یہ ایک ایسی مووی ہے جس میں دنیا کے اندر ایک نیوکلیر وار ہوتی ہے۔ اس وار کے بعد دنیا میں پانی کا قحط پڑ جاتا ہے اور تیل کی کمی کا شکار ہو جاتی ہے ساری کائنات، اور اس کے ساتھ ہی ساری زمین بنجر اور ویران ہو جاتی ہے، سوائے ایک جگہ کے ہر جگہ پانی، تیل اور خوشحالی صرف دنیا کے ایک ہی کونے پر موجود ہوتا ہے۔ آئیں اس کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کریں گے میڈ میکس فیوری روڈ کی ایکسپلینیشن۔ جیسے کہانی شروع ہوتی ہے تو ہم میکس کو دیکھتے ہیں۔ میکس کسی زمانے میں پولیس فورس میں تھا، لیکن اب دنیا میں نہ پولیس، نہ آرمی اور نہ ہی سیاستدان ہوتے ہیں۔ دنیا میں ورلڈ وار 3 ہوتی ہے جس میں نیوکلیر ویپنز کو یوز کیا جاتا ہے۔ نیوکلیر ویپنز کی وجہ سے ہوا زہریلی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پوری دھرتی بنجر ہو جاتی ہے اور اس زمین پر بچے ہیں صرف چند ایک لوگ۔ میکس کو اپنی پریوار کی ویژنز آتے ہیں جو سب مر چکے ہیں۔ میکس اپنی گاڑی میں یہاں سے آگے نکلتا ہے، وہاں پر گاڑیوں کے قافلہ آتا ہے جو میکس کی گاڑی کو ٹکر مار کر اسے گرا دیتے ہیں۔ وہ لوگ میکس کو قید کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ میکس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اس کی پیٹھ پر ٹیٹو بنا دیتے ہیں جس کے اوپر وہ لکھتے ہیں او نیگیٹو، جو کہ میکس کا بلڈ گروپ ہے۔ وہ ایک یونیورسل ڈونر ہے۔ یہ لوگ میکس کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، لیکن غلامی کی مہر لگنے سے پہلے ہی میکس وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، مگر وہ لوگ پھر سے میکس کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ سب لوگ امورٹن جو کے لیے کام کرتے ہیں۔ امورٹن جو اس دنیا کا سب سے طاقتور انسان تھا۔ وہ اپنے چہرے پر ایک ڈراؤنا شکنجا پہنتا ہے جس کے دونوں طرف میں 2 پائپ لگے ہوتے ہیں اور اسی شکنجے کی مدد سے وہ سانس لے پاتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے یہ شکنجا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ جس جگہ رہتا ہے وہ بہت ہی اونچی جگہ پہاڑ کی چوٹی پر ہے اور اس کے نیچے بہت سارے لوگ رہتے ہیں۔ وہ سب کے سب بہت ہی کمزور، نحیف اور ضعیف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد امورٹن جو کہتا ہے تم سب کو صرف اور صرف میری وجہ سے یہاں سے نجات ملے گی، میں ہوں تمہارا نجات دہندہ۔ اس کے بعد وہ اوپر سے پانی چھوڑتا ہے۔ پانی کو دیکھ کر تمام لوگ خوشی سے نڈھال ہو جاتے ہیں۔ پانی کی بہت ہی کمی ہے، اتنا سارا پانی دیکھ کر لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے فیوریوسا۔ وہ بھی امورٹن جو کے لیے کام کرتی ہے۔ امورٹن جو نے اسے بھیجا ہوتا ہے فیول اسٹیشن سے فیول لینے کے لیے، لیکن وہ فیول اسٹیشن پر جانے کی بجائے اپنی گاڑی پورب کی طرف موڑ لیتی ہے۔ ایک آدمی اسے کہتا ہے کہ ہم ادھر کیوں جا رہے ہیں، ہمیں تو سیدھا جانا ہے، تو وہ اسے کہتے ہیں کہ ہمیں اسی طرف سے جانا پڑے گا۔ سینئر ہونے کی وجہ سے اس کا آرڈر کوئی بھی ٹال نہیں سکتا تھا۔ بدقسمتی سے امورٹن جو یہ پورا نظارہ دوربین سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا چیمبر کے اندر جاتا ہے جہاں پر اس نے 5 لڑکیوں کو قیدی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ لڑکیاں اس کے لیے بچے پیدا کریں گی تاکہ اس کی نسل آگے بڑھ سکے۔ امورٹن جو دیکھتا ہے کہ وہ ساری لڑکیاں وہاں سے غائب ہیں۔ اس سے امورٹن جو سمجھ جاتا ہے کہ فیوریوسا انہیں اپنے ساتھ لے جا چکی ہے۔ امورٹن اپنی آرمی کو آرڈر دیتا ہے کہ جاؤ فیوریوسا کو پکڑ کر لاؤ۔ امورٹن کی آرمی بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت ہی وفادار اور جانثار لوگ ہیں اور اب انہیں موقع ملتا ہے اپنی جانثاری اور وفاداری ثابت کرنے کا۔ امورٹن جو کی آرمی کا نام وار بوائز ہے۔ نیوکلیر ریڈیشن کی وجہ سے ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے ان سب کو خون کی بہت شدید ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے انہوں نے میکس کو بندی بنایا ہوتا ہے تاکہ اس کی باڈی سے خون لے سکیں۔ یہاں پر ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو بہت ہی کمزور ہوتا ہے، لیکن وہ ہر صورت فیوریوسا کو پکڑنا چاہتا ہے اور وہ اپنی گاڑی کے آگے باندھتا ہے میکس کو۔ میکس کی باڈی سے ایک پائپ وار بوائز کی باڈی سے ٹچ ہوتا ہے جس کے ذریعے میکس کی باڈی کا بلڈ اس کی باڈی میں جا رہا ہوتا ہے جس سے اسے انرجی ملتی رہتی ہے۔ وہ امورٹن جو کے لیے جنگ میں شریک ہو کر مرنا چاہتا ہے اور شہید ہونا چاہتا ہے۔ امورٹن جو کی دنیا میں شہید ہونا فخر کی بات سمجھی جاتی ہے۔ اتنے میں فیوریوسا دوسرے لوگوں کے علاقے میں پہنچ جاتی ہے اور وہ لوگ گاڑیوں کے ذریعے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فیوریوسا کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ایک کر کے سبھی مارے جاتے ہیں۔ اب امورٹن جو کی آرمی وہاں پر پہنچ چکی ہے۔ دوسرے علاقے کے لوگ امورٹن جو کی آرمی سے لڑتے ہیں اور ان سب کو ایک ایک کر کے مار ڈالتے ہیں۔ فیوریوسا کو پکڑنے سے پہلے ایک بہت بڑا طوفان آ جاتا ہے۔ فیوریوسا اپنی گاڑی لے کر اس طوفان کے اندر ہی چلی جاتی ہے اور وہ وار بوائز جس کے آگے میکس بندہ ہوتا ہے وہ بھی طوفان کے اندر گھس جاتا ہے، اور جب وہ فیوریوسا کی گاڑی کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اپنی گاڑی کے اندر بہت سارا پیٹرول ڈال دیتا ہے کیونکہ وہ اپنی گاڑی کے اندر آگ لگا کر فیوریوسا کو روکنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بلاسٹ کرتا ہے میکس اس کا جلدی سے ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اتنے میں ان کی گاڑی فیوریوسا کی بڑی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے جس سے وار سولجر کی گاڑی پلٹ جاتی ہے۔ اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ طوفان بالکل رک چکا ہے۔ میکس ابھی تک زندہ ہے مگر وار سولجر کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ میکس اسی کے ساتھ ایک زنجیر سے بندھا ہوتا ہے، وہ اسے اٹھا کر اپنے کندھے پہ ڈالتا ہے اور وہاں چل پڑتا ہے جہاں پہ فیوریوسا اپنی 5 لڑکیوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ میکس ان پر بندوق تان دیتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ میری زنجیر کاٹو۔ جب ایک لڑکی زنجیر کاٹ رہی ہوتی ہے تو فیوریوسا جلدی سے اس پر اٹیک کر دیتی ہے۔ ان دونوں کے بیچ بہت زبردست ہاتھا پائی ہو رہی ہوتی ہے اور تب وہ وار سولجر جاگ جاتا ہے کیونکہ وہ مرا نہیں ہوتا، وہ تو بس بے ہوش ہوا تھا۔
वो हर कीमत पर फिरोसा को पकड़ना चाहता है ताकि वो इमोर्टल जो से मुंह मांगा इनाम ले सके। मैक्स और वॉर सोल्जर दोनों मिलकर फिरोसा को अपने कब्जे में ले लेते हैं। वॉर सोल्जर ये देखकर बहुत खुश होता है कि मैक्स उसका साथ दे रहा है। वो जल्दी से उसकी जंजीर काट देता है। जैसे ही वो उसकी जंजीर काटता है तो मैक्स उसे जोरदार पंच मारता है और फिर वो उनकी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है। फिरोसा ने 5 लड़कियों से कहती है कि अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें यहाँ से भागना होगा। वो जल्दी से भागकर उसी गाड़ी की जानब जाती है जिसमें मैक्स जा रहा होता है। वो उसे कहती है कि मैंने इसमें एक पिन सेट की हुई है, एक पासवर्ड लगाया हुआ है, अगर आपको वो पासवर्ड पिन नहीं मिलेगी तो आप इसे नहीं चला सकते। इस वजह से मैक्स को उन सबको अपने साथ ले जाना पड़ता है। उनका सामना एक और गैंग से होता है। फिरोसा मैक्स से कहती है कि मैंने इनसे डील की थी कि हमें यहाँ से जाने देंगे, तब तो ये बात मान गए थे, अब पता नहीं हमें जाने देंगे या फिर नहीं। फिरोसा उन 5 लड़कियों और मैक्स को कहती है कि आप सब गाड़ी के अंदर छुप जाएं। फिरोसा उनके सरदार से मिलती है और उनका सरदार कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा पीछा सिर्फ चंद लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो 3 जंगी पार्टियां तुम्हारा पीछा कर रही हैं। फिरोसा ने उनसे वादा किया था अगर वो इसे यहाँ से गुजरने देंगे तो इसके बदले में वो उन्हें तेल देगी। वो सारा तेल एक गोल से टैंकर में होता है और इससे पहले कि उस गोल से टैंकर को अलग करती, फिरोसा देखती है कि पीछे से इमोर्टल जो अपने लोगों के साथ उनके पीछे पहुंच चुका है। इसलिए मैक्स गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से जाने लगता है। फिरोसा बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बैठ जाती है। जिन लोगों का ये इलाका होता है वो सामने के चट्टान को ब्लास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से अंदर आने का रास्ता बंद हो जाता है। इमोर्टल जो और उसकी आर्मी सारे के सारे बाहर ही रुक जाते हैं। जिन लोगों का ये इलाका होता है वो सब के सब बाइक के एक्सपर्ट होते हैं। वो पहाड़ी चट्टानों पर उन बाइकों को दौड़ाना शुरू कर देते हैं और मैक्स और फिरोसा का पीछा करते हैं। मैक्स और फिरोसा एक ही कार के इन सभी बैकर्स को हलाक कर डालते हैं। इससे पहले कि वो इस खतरनाक इलाके से निकलते, इमोर्टल जो अपनी गाड़ी के साथ उनके पीछे पहुंच जाता है। इमोर्टल जो फिरोसा को गोली मारने वाला होता है। फिरोसा उन 5 लड़कियों में से एक लड़की को गाड़ी से बाहर खड़ा कर देती है। ये लड़की उसके बच्चे की मां बनने वाली होती है। इसलिए इमोर्टल जो उन पर फैरी नहीं करता, क्योंकि वो हर सूरत अपने बच्चे को बचाना चाहता है, क्योंकि वो बच्चा उसका फ्यूचर था। इमोर्टल जो के एक आदमी एक जंजीर फायर करता है जो उनके स्टीयरिंग के साथ अटक जाती है, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी उनके कंट्रोल में चली जाती है। तब वो लड़की जो प्रेग्नेंट होती है वो गाड़ी से बाहर निकलती है और जंजीर को काट देती है। वो लड़की इसलिए बाहर निकलती है क्योंकि उस पर गोली नहीं चला सकते। इतने में सामने एक चट्टान आ जाती है, गाड़ी उससे टकराती है और गाड़ी का दरवाजा टूट जाता है और वो लड़की जो जंजीर काटने गई थी वो भी गाड़ी से बाहर ही होती है। जैसे वो अंदर एंटर होने लगती है तो उसका पाँव फिसल जाता है और वो उसी के साथ ही लटक जाती है। उसके वजन से दरवाजा टूट जाता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाती है। उसके पीछे इमोर्टल जो आ रहा होता है वो देखता है कि लड़की नीचे गिर गई है, तो वो उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड पे टर्न करता है। जैसे ही गाड़ी टर्न होती है तो वो उल्ट जाती है। इमोर्टल जो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और वो देखता है कि वो लड़की जिसके पेट में उसका बच्चा है वो बहुत बुरी तरह से जख्मी है और अपनी आखिरी सांसें ले रही है। ये देखकर इमोर्टल जो चीखता है, चिल्लाता है। दूसरी तरफ मैक्स और फिरोसा आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। उनकी गाड़ी में इमोर्टल जो को वो वॉर बॉय भी छुपा था जिसका नाम नक्स है। नक्स यहाँ पर बहुत अपसेट है। वो सोचता है कि मुझे एक चांस मिला था कि मैं तुम लोगों को पकड़कर इमोर्टल जो के हजूर पेश करता और मुंह मांगी कीमत वसूल करता और मैं शहीद होकर अपने साथियों के साथ जन्नत जा सकता था, लेकिन अफसोस दर अफसोस मैंने सारे चांस ही ज़ाया कर डाले। गाड़ी में जो 4 लड़कियां होती हैं उनमें से एक लड़की उसे समझाती है कि शायद तुम्हारा मुकद्दर कुछ और ही है। वो लड़की जैसे उसके होंठों पर हाथ लगाती है तो नक्स पूरी तरह से पुरसुकून हो जाता है। इन्हीं चलते चलते रात हो जाती है। मैक्स और फिरोसा देखते हैं कि इमोर्टल जो के काफिला अभी तक उनका पीछा कर रहा है। मैक्स जमीन पर डायनामाइट बिछाकर अपनी गाड़ी को वहां से लेकर निकल जाता है। जैसे इमोर्टल जो का काफिला उस डायनामाइट के ऊपर आता है तो वहां पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सारा काफिला वहां पर रुक जाता है। मगर उनमें से एक गाड़ी वहां से आगे निकल जाती है जो मैक्स और फिरोसा का मुसलसल पीछा कर रही है। मैक्स और फिरोसा पर एक और मुसीबत आ पड़ती है। उनकी गाड़ी का एक टायर दलदल में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। इनके साथ एक वॉर बॉय नक्स था जो फिरोसा की जान का प्यासा था। वो अब उनकी मदद करता है। नक्स उन्हें बताता है कि वहां पर एक सूखा दरख्त है, अगर हम अपनी गाड़ी की रस्सी को उससे बांध दे तो हम यहाँ से गाड़ी को निकाल सकते हैं। जैसे ही मैक्स गाड़ी की जंजीर उससे बांधता है तो पीछे से इमोर्टल जो का काफिला उन तक पहुंच जाता है। वो लगातार उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि वो इन सबको हलाक करते उनकी गाड़ी उस दलदल से निकल जाती है और वो यहाँ से निकल जाते हैं। आगे जाकर मैक्स गाड़ी रोक देता है और एक ऑयल का डब्बा लेकर इमोर्टल जोई वाली गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है और कुछ ही देर बाद फिरोसा देखती है कि एक ब्लास्ट हुआ है। फिरोसा समझती है कि शायद मैक्स भी इस ब्लास्ट में मारा गया, लेकिन मैक्स बच जाता है। मैक्स उनकी गाड़ी ब्लास्ट करके उनके सब हथियार भी ले आता है। सारी रात गाड़ी चलाते हुए बहुत ही थक जाते हैं। जब सुबह होती है तो फिरोसा को एक टावर दिखता है। वो बताती है कि मैं बचपन में जहाँ रहती थी वहाँ पर भी एक ऐसा ही टावर था।
फिरोसा जब वहाँ पहुँचती है तो अपना नाम बताती है और अपने कबीले का नाम भी बताती है, और जैसे वो अपनी मॉम का नाम बताती है तो उसके पास बहुत सारे बाइकर्स आ जाते हैं। ये सब के सब फीमेल होते हैं। फिरोसा यहाँ पर अपनी मॉम से भी मिलती है। वो सब लोग पहचान लेते हैं फिरोसा को। फिरोसा उन बताती है कि मेरे पास 4 लड़कियां हैं और मैं इनको ग्रीन प्लेस ले जाना चाहती हूँ। उनमें से एक बूढ़ी खातून उसे बताती है जिस तरफ से तुम आ रही हो वो मंजिल तो वहाँ पर है। फिरोसा को ये सब सुन के बहुत दुख होता है। तब ये सब प्लान बनाते हैं कि हम इस सूखे हुए समंदर के उस पार जाएंगे ताकि हम अपने लिए एक नया घर बना सकें। मगर मैक्स उनके साथ नहीं जाना चाहता। वो चाहता है कि मैं अपने अलग रास्ते पर चलूं। जब सबके सब चले जाते हैं तो मैक्स को एक छोटी बच्ची के विजन आते हैं। वो कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे बचाओगे, लेकिन तुमने मुझे नहीं बचाया। वादा फरामोश। माजी में मैक्स एक बच्ची की जान नहीं बचा पाया था। इस विजन के बाद मैक्स अपनी बाइक लेकर फिरोसा के पास पहुंच जाता है। वो नहीं बताता कि जिस तरफ तुम जा रहे हो वहां पर नमक के अलावा कुछ नहीं है। हमें वापस इमोर्टन जॉय के किले जाना चाहिए। वहां पर पानी और हरियाली दोनों ही मौजूद हैं। अगर एक दफा हमने उस किले को कब्जे में ले लिया तो सब कुछ हमारा होगा। वो सब मैक्स की बात मान लेते हैं और वापस इमोर्टन जॉय के किले की जानब चल पड़ते हैं। रास्ते में इमोर्टन जॉय और उसके लोग इनकी गाड़ी को देख लेते हैं। इमोर्टन जॉय समझ जाता है कि लोग किले की तरफ जा रहे हैं, किले पर कोई आर्मी ही नहीं है। इसलिए इमोर्टन जॉय अपने काफिले के साथ इनका पीछा करना शुरू कर देता है। मैक्स और फिरोसा इमोर्टन जॉय के कई लोगों को मार डालते हैं, मगर इमोर्टन जॉय उन 4 में से एक लड़की को पकड़ लेता है। फिरोसा किसी तरह इमोर्टन जॉय की गाड़ी तक पहुंच जाती है और उसके मास्क को खींचकर निकाल देती है। इस वजह से इमोर्टन जॉय की डेथ हो जाती है। लेकिन इमोर्टन जॉय के बहुत सारे लोग जिंदा हैं और वो वॉर बॉयज प्यासे हैं फिरोसा के और मैक्स के खून के। मैक्स जो गाड़ी चला रहा होता है उसमें एक तेल का टैंकर होता है। वो इस गाड़ी को उनसे टकराता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो सब लोग इस ब्लास्ट से मारे जाते हैं। फिरोसा बहुत वीक हो जाती है। मैक्स समझ जाता है कि उसे ब्लड की जरूरत है। वो अपना ब्लड उसकी बॉडी में ट्रांसफर करता है। अब ये सब लोग इमोर्टन जॉय के किले तक पहुंच चुके हैं। वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, मगर ये जैसे इमोर्टन जॉय की लाश उन्हें दिखाते हैं तो वो सब के सब बहुत खुश होते हैं। इमोर्टन जॉय मारा गया इसलिए वहां पर पानी को भी खोल दिया जाता है। पानी को देखकर सब लोग खुशी के गीत गाने लगते हैं। किले के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब फिरोसा और उन 4 लड़कियों का स्वागत करते हैं। सारी दुनिया बंजर बन चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभी तक हरियाली और पानी दोनों मौजूद हैं, जो न्यूक्लियर वॉर की वजह से दुनिया के किसी कोने में भी नहीं है। के बाद फिरोसा ऊपर से देखते हैं कि मैक्स भी लोगों के दरमियान खड़ा हुआ है और वो वहां से जा रहा होता है, क्योंकि उसने जिस काम की जिम्मेदारी ली थी वो अब पूरा हो चुका था। और इसी के साथ ये कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है।